Good evening, friends. Back to the live session today and inviting right now uh, Mr. Jignesh Rawal, who is one of my friend and colleague. Hello, Jignesh. Good evening. Hello, hello, Prar. Good evening. Okay. To give the brief profile and introduction of Jignesh, he is a Commons graduate from Gujarat University, pursued his basic post-graduation diploma in sales and marketing from National Institute of Sales and started his career in health sales executive in 1996. Today, he is working as a regional manager for Saurashtra and Kutch at VTrans Limited. During the professional journey, he has received many milestones, out of which most recognized one is Pride Award with FedEx in Europe and Middle East Africa, EMEA, in Regional Sales Manager category in 2012. Wow, this is quite a astute recognition that you have, Jignesh. So, Thank without you, Prar. wasting any more time, we have been already late a few minutes in getting live also. But without taking anything else from our viewers, I'll hand over the whole talk to you. And if and when you need me, I'll be always here at the back. And Jignesh will tell us about sales and his life journey with sales. Okay. So over to you, Jignesh. Thank you again for your time. Thank you, Prahar. Thank you, Millennium Makers, for inviting me for this particular session, and thank you, viewers, for giving us the time that you are sparing in this COVID-19 period. Friends, I started my career in 1996, and though being a commerce graduate, why I chosen my career sales as my career? Why? For me, freedom was the main reason. Freedom was the main reason. I didn't wanted to sit at one place. I didn't wanted to have a clerical job wherein I will be occupied from 9:30 to 5:30 or 9:30 to 6:30 or 7 o'clock. And I don't wanted to have this stereotype job. That was the main reason. When I was when I passed out my graduation, and when I spoke to my dad about I wanted to have the professional life started now, my dad said, "Why don't you meet up one of the his president?" And I was called by him at his office for the meeting, and then he asked me, "What do you want to do?" Then I said, "Sir, my interest level is very simple. मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता. मैं एक आदमी के साथ में अगर मैं 3 घंटे 4 घंटे बैठूंगा और एक ही बात अगर मैं करूंगा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा ऑफिस में बैठ के. So I wanted to meet up new people, and I want to have the different minds so that I can explore the world, what whole world is carrying along with them." And then he said that why don't you try with the sales? And this is how I entered into the field of sales and marketing in 1996 with one of the dealer. I'll say this was the main reason for me, but later on, when I started my career and when the time started passing through, when I started learning many things from the people whom I had been meeting, then I realized that sales में रह के बॉस बहुत मजा है. इसमें तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है. अब मैं कहीं भी जाऊं, if I go to a manufacturing unit, if I go to a shopkeeper, if I go to any office, and any non-profit making government organization also, anywhere I go, सब जगह पे अलग अलग माइंडसेट मिलते थे. सब जगह पे कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था. एंड देन आई सेड कि यहाँ से अगर मैं चाहूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. देन आई स्टार्टेड सीकिंग द गाइडेंस फ्रॉम माय सुपीरियर्स, फ्रॉम माय मैनेजर्स, एंड दे गाइडेड मी कि बॉस यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपकी शुरुआत है.
and now you have got the opportunities. Unmet job securities were there कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स के आदमी की तो जरूरत पड़ेगी, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेगमेंट में जाऊं, किसी भी इंडस्ट्री में घुसूंगा, वहां पे सेल्स की तो जरूरत रहेगी, बिजनेस तो चाहिए हर एक को। सेल्स में रह के कंटिन्यूअस लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। इफ यू रिमेंबर कि आपको हर एक इंसान से, हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे कलेक्शंस हो, चाहे एचआर हो, चाहे एडमिन हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आईटी हो, हर एक के साथ में आपको काम करना है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप हर एक चीज अगर आप सीखते जाओगे, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इकोनॉमी इक्वेशंस, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड यहाँ पे सेल्स में ऑलवेज समथिंग न्यू, ऑलवेज फन, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, रोज नई चैलेंज, रोज नए इक्वेशंस, रोज नए प्रॉब्लम्स, रोज नए सॉल्यूशन ढूंढो, रोज नई नई तरह से नए नए कस्टमर्स को मिलो, उनको जब हम सुनते हैं तो उनकी तरफ से कुछ अलग ही चीज निकल के आती है। तो हर एक इंसान को मिले अलग चीज, हर एक इंसान को मिले उसका माइंडसेट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके साथ में अलग अलग चीजें सीख के कुछ नया, कुछ फन मिला। एंड देन आई सेड कि बॉस इनकम भी इसमें काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि सेल्स वाले को तो एक फिक्स सैलरी के साथ में, जो ऑफिस में बैठते हैं कलेक्ट, जो अकाउंट्स वाले हैं, या तो एचआर वाले हैं, या तो आईटी वाले हैं, या तो कोई भी डिपार्टमेंट अगर देखे अपन दूसरा, तो उनको तो एक फिक्स सैलरी मिलेगी। जबकि सेल्स में आपने जो सेल्स परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे आपको एडिशनल इनकम मिलेगी, आपको इंसेंटिव मिलेगा। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द अट्रैक्शन टू मी, दैट अट्रैक्टेड एंड दैट सेड कि बॉस इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आगे अगर देखने जाओ तो आगे तो मुझे दिख रहा था कि दुनिया इससे आगे, जब मैंने देखा तो काफी बड़ी दिख रही थी। आई कुड सी कि बॉस एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आगे चल के अगर उसने सारे डिपार्टमेंट्स में, अगर उसने अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया है, अगर उसने समझ लिया है, तो वो आगे जाकर के किसी भी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, वो सीईओ बन सकता है, सीओओ बन सकता है। तो क्यों ना सेल्स को अपना एक फोरे बनाया जाए और उसी लाइन पे आगे बढ़े, जिससे सेल्स के साथ में ऑपरेशंस है या एनी अदर फंक्शंस, उसके अंदर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी चाहिए। अब काफी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि बस सेल्स के अंदर तो कितना प्रेशर रहता है। प्रेशर तो बस हम अगर सोचेंगे, इफ वी थिंक देयर इज अ प्रेशर, देन देयर इज अ प्रेशर। इफ वी थिंक कि यहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो नहीं लगेगा वो प्रेशर। कैसे? एक बच्चे को देखना, सेल्स की अगर बात करें ना प्योरली, तो सेल्स एक छोटा सा बच्चा जो 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का या 12 महीने का है, वो भी अपने आप को सेल करता है। हम जब बच्चे थे तब से हम सेल कर रहे हैं। हम जब बच्चे थे तब से हम सेल कर रहे हैं, और हम जब तक जिएंगे तब तक हम सेल करते रहेंगे। सेल्स है क्या? एक्चुअल में सेल्स है क्या? आप अगर देखेंगे तो सेल्स में क्या होता है? सेल्स इज नथिंग एल्स, पर it can be considered as a part and promotion of product, price, place and promotion. हम क्या करते हैं? Sales creates the demand and creates the relationship. हम किसी से भी मिलेंगे, अगर मैं कोई भी चीज अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरी वाइफ को अगर मुझे कन्विंस करना है तो मुझे बताना तो पड़ेगा, व्हाई आई वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर माय होम। मुझे वाइफ को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज, अगर किसी को, मैं अगर फील्ड में हूं, अगर मैं ऑपरेशंस में हूं, अगर मुझे किसी को कन्विंस करना है कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस जो है उसमें ये पर्टिकुलर सर्विस क्यों लेनी चाहिए, इस कंपनी की सर्विस, ये आदमी की सर्विस, ये पर्टिकुलर व्हीकल हमें क्यों हायर करना है, ये पर्टिकुलर कंपनी की ही सर्विस हमें क्यों लेनी है,
तो हमें सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर हम उसे कन्विंस करते हैं तब जाकर के सेल होता है, क्योंकि उस टाइम पे या तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है अगेंस्ट द मनी. दैट इज व्हाट इज द सेल्स इन द सिंपल वर्ड्स. सेल्स इज बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ द क्लोजिंग एंड मार्केटिंग, जो सेल्स के साथ में जुड़ा हुआ है. दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द ओपनिंग. मार्केटिंग शुरुआत करता है, कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करता है, प्रोडक्ट के बारे में 4 चीजें डालता है, और उसको एक सेल्स पर्सन या तो एक इंसान जो उसको सेल करना चाहता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या तो सर्विस को, वो उसको बेच के उसका क्लोजिंग करता है, तब जाकर के उसकी सेल बनती है. तब तक के सेल नहीं होती है. सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड. सेल्स इज बेसिकली अ कोर पर्पस ऑफ द मार्केटिंग. सेल्स के बगैर मार्केटिंग अधूरा रहेगा, मार्केटिंग के बगैर सेल्स अधूरा रहेगा, क्योंकि सेल्स नीड्स ग्रेट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग नीड्स द ग्रेट सेल्स टू फुलफिल ईच अदर. सेल्स इन मोर सिंपलर वर्ड्स अगर बोले ना, सेलिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट. सेलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द कस्टमर with the good he or she needs in the exchange of a price. It is usually between the two parties. Selling is more like an agreement wherein the buyer receives the product in the exchange for the money. हमें जब सेल्स करना चालू करना है, अगर हमें हमारा करियर स्टार्ट करना है, हमें जब अगर सेल्स में उतरना है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि सेल्स क्यों ले. सेल्स में मेरे सामने टारगेट आएगा, पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी, पीपल विल टेक माय रिपोर्ट्स. हर एक मिनट का रिपोर्ट मांगेगा कि बॉस आपने क्या किया है, आपने क्यों ये नहीं किया, क्यों ये इस तरीके से आपने किया कि जिससे आप ये पर्टिकुलर सेल नहीं कर पाए. तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि सेलिंग इज साइंस और सेलिंग इज एन आर्ट? जरा बताइए. सेलिंग इज व्हाट? सेलिंग इज साइंस और सेलिंग इज एन आर्ट. कुछ लोग बोल रहे हैं सेलिंग इज एन आर्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं सेलिंग इज साइंस. Millennium Maker says it is an art. I say it is a combination of both. सेलिंग में आपको एक साइंस और आर्ट दोनों का मिलेगा कॉम्बिनेशन. कैसे? देयर इज अ डिजायर, वांट, एंड यू नो व्हाट डू यू वांट टू डू. फॉर दिस यू फॉलो अ प्रोसेस, दैट इज अ साइंस. But how you fit this particular want, how you fit your desire, that is an art. आप एक प्रोसेस तो आपको बनाना पड़ेगा. आपकी एक विश है, उसके लिए आपको वो विश अगर आपको अचीव करनी है तो आपको एक डिजायर चाहिए. आपको उसके सामने आपको एक प्रोसेस सेट करना पड़ेगा. देयर हैज टू बी अ टाइमलाइन जो आप सेट करेंगे. जो प्रोसेस जब बनाते हैं हम तो उसे साइंस बोलते हैं, लेकिन वो प्रोसेस के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं आर्ट के साथ में, क्योंकि आर्ट क्यों चाहिए? इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल डूइंग. आर्ट इज व्हाट? इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज और नेचुरल एबिलिटी दैट यू हैव डेवलप्ड थ्रू अ प्रोसेस. हमारे पास में बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा साइंस का, मेडिसिन का, लेकिन अगर हमें वो अप्लाई करना नहीं आएगा तो हम वहां पे फेल हो जाएंगे.
साइंस हम स्टडी करके गेन कर सकते हैं, बट प्रोफिशिएंसी इन आर्ट इट कैन बी गेन्ड ओनली बाय द प्रैक्टिस। सो हमें स्टडी भी करना पड़ेगा सेल्स को, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके साथ में हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिसको सेल्स में हम लोग बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग आप जितनी करेंगे उतना हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग करके वहां पे जो भी हमारी मिस्टेक्स होती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमें कितना स्ट्रांग बनाना है, वो सारी चीजें हमें ट्रेनिंग से मिलती है। और उससे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको जब हम लोग रियल फील्ड में जब उसको अप्लाई करते हैं, देन दैट बिकम्स अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग रियल टर्म्स में सेल्स मैनशिप हम लोग करते हैं। सेल्स में अगर हम आगे बढ़े तो आपको क्या लगता है, इज सेल्स इजी और इज सेल्स टफ? सेल्स सही में इजी होगा या टफ होगा? हम जाते हैं ना दुकान में, हम किसी भी शोरूम में जाते हैं, हम लोग मॉल में जाते हैं, हम लोग किसी भी शॉप पे जाते हैं, हम लोग थिएटर में जाते हैं, हम लोग टिकट्स मांगते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, हमें कपड़े खरीदने हैं, हमें शूज खरीदने हैं, हमें लैपटॉप खरीदना है, हमें मोबाइल खरीदना है, काफी सारी चीजें हमें खरीदनी है, हमें परचेज करनी है। उस टाइम पे हम जाते हैं, हम सेल्स वाले से मिलते हैं। तो उसको देख के आपको क्या लगा कि सेल्स इजी है या टफ है? काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो लोग आज स्टूडेंट्स है, जो लोग अपना करियर स्टार्ट करने की बॉर्डर पे खड़े हैं, या तो कुछ लोगों ने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिन लोगों ने अपना करियर ऑलरेडी एक मिडिल लेवल पे लेके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेल्स क्या है, इजी है, टफ है? इट इज एक्चुअली अगर देखने जाए तो सेल्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ना ही वो इजी है, ना ही वो टफ है। अगर हम मानते हैं किसी भी चीज को, मैं फिर से दोहराऊंगा, आई विल रिपीट अगेन, कि इफ यू फील दैट इट इज टफ, इट इज गोइंग टू बी, इफ यू फील इट इज इजी, इट इज द इजीएस्ट वन, इट इज द इजीएस्ट वन। सेलिंग में सेल्स में अगर आपने हर्ट एंड रेस्क्यू का अप्रोच अगर आपने लिया, बीइंग अ सेल्स पर्सन, अगर आप हर्ट एंड रेस्क्यू का अप्रोच अगर आप लेते हैं, देन थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। ये हम कैसे कर सकते हैं? हर्ट एंड रेस्क्यू इज व्हाट? हम जब कस्टमर से मिलते, बीइंग अ सेल्स पर्सन, जब मैं कस्टमर से मिलता था तो मैं क्या करता था, मुझे एक ट्रेनिंग दी गई थी, मुझे समझाया गया, बताया गया, व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय basic post graduation diploma in sales and marketing. That time Mr. Philip Kotler, he is a management marketing guru, and उनकी एक बुक थी जिसके ऊपर हमें बताया गया स्पिन मॉडल। व्हाट इज स्पिन मॉडल? हर एक इंसान जीवन में हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर एक चीज में हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है। एम आई राइट? हम कोई भी चीज करेंगे तो हमारे पास में एक सवाल तो पैदा होगा ना। अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मैंने आज बात करने से पहले अपने आप को सवाल पूछा होगा कि मैं क्यों, व्हाट आई विल से, व्हाई आई विल से दिस। मेरे सामने एक सिचुएशन रखी गई कि दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन, तो उसके बाद में मैंने सोचना स्टार्ट किया। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं, अगर मुझे किसी को प्रोडक्ट सेल करनी है, तब भी मैं सोचता हूं कि मैं क्यों, अभी की सिचुएशन क्या है, आज की सिचुएशन क्या है। अगर मैं किसी से डिस्कशन करता हूं तो उसके अंदर मैं सोचता हूं कि आज की मेरी सिचुएशन क्या है, तो उसके बेसिस पे मैं 10 चीजें अगर मैं जानता हूं कि करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो जो है
करंट सिनारियो क्या है उसको जानने के लिए हर एक इंसान को सवाल पूछने चाहिए, विच इज नोन एज सिचुएशन क्वेश्चन। हम लोग ये चीज करते हैं, हमें जब तक सिचुएशन नॉर्मल पता ना हो एज अ सेल्स पर्सन सकते, सिचुएशन के बाद में आता है वो सिचुएशन से हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा ना, सामने वाले कस्टमर का, सामने वाले इंसान का जो भी प्रॉब्लम है। मैं अगर एक सेल्स पर्सन हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, वो मैंने समझा। तो उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि इसके अंदर से मुझे एक इम्प्लाइड नीड मिल रही है। ये मॉडल हमें समझाया गया था विच इज नोन एज अ स्पिन मॉडल। और ये जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर हमने ली, देन आई बेट सेल्स विल बिकम अ प्ले फॉर यू। आप उसके साथ में खेल सकते हो जैसे चाहो वैसे, क्योंकि सिचुएशन आपको मालूम है, प्रॉब्लम्स आपको मालूम है, उस कस्टमर की नीड क्या खड़ी हुई है वो हमें मालूम है। तो उसके बेसिस पे मेरी प्रोडक्ट जो है या मेरी सर्विस जो है वो कहां पे फिट होगी और क्यों मेरी ही प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर लेगा। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सेल्स। जब हमने अगर ये समझा, देन थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर अस। जैसे अगर हम देखें तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अगर पता नहीं है, मैंने अगर अपने आप को सिचुएशन नहीं समझी है, मैंने अगर प्रॉब्लम्स नहीं समझे, मैंने अगर कस्टमर को नहीं अंडरस्टैंड किया, तो मैं कुछ भी सेल नहीं कर सकता ना। और इसके लिए मुझे स्मार्ट होना चाहिए था। क्या स्मार्ट होना चाहिए? मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मुझे मेजरेबल होना पड़ेगा, अटेनेबल बनना पड़ेगा, एक रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड अप्रोच मुझे रखना पड़ेगा। मेरे गोल्स जो है उस हिसाब से मुझे सेट करने चाहिए, तभी मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। मैंने मेरे करियर में जब मैंने जो मैं आपको बता रहा था उसमें व्हेन माय मेंटर टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स, उसको मैंने साथ में कैरी किया एंड आई स्टार्टेड मूविंग माय लाइफ इन दैट डायरेक्शन। उसमें आप बोलेंगे चैलेंजेस आते हैं सेल्स में, मैं कहूंगा हाँ, चैलेंजेस आएंगे एंड डिसअपॉइंटमेंट्स भी आते हैं। सेल्स डील कभी क्रैक नहीं होती है, कहीं पे प्रॉब्लम आता है, कस्टमर कन्विंस नहीं होता है। मैं जो कन्विंसिंग एटीट्यूड से गया था वो एटीट्यूड सामने कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, कस्टमर ने मेरा जो पॉइंट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी जो डील होनी थी वो नहीं हुई। आई केम बैक। अब मैं जब वापस आया, उसमें क्या हुआ, मैं जब वापस आया तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि क्या हुआ बेटा। मैंने बोला बॉस, मुझे लगता है कि मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, घोड़े को मैं पानी पिला नहीं सकता। तो उस दिन मेरे मैनेजर ने मुझे बोला, बेटा मैंने तो आपको कभी ये नहीं बोला कि आपको घोड़े को पानी पिलाना है, मैंने तो आपको हमेशा से ये चाहा है और ये समझाने की कोशिश करी है कि आपको घोड़े को और प्यासा करना है, आपको घोड़े की प्यास बढ़ानी है। आप घोड़े को ये बताओ कि भाई आपकी प्यास कितनी बड़ी है और आपकी प्यास किससे बुझेगी, ये जो पानी है उससे बुझेगी। जब तक हम कस्टमर को ये नहीं बताएंगे तब तक हमारी जो डील है, हमारा जो सेल है वो कंप्लीट नहीं होता है। हमारा सेल कंप्लीट तभी होता है जब कस्टमर को ये लगेगा कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट या तो ये सर्विस क्यों चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, हो सकती है जो प्रोडक्ट या सर्विस जो हम उसको ऑफर करेंगे, लेकिन वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ में मैच होनी चाहिए। जब मैंने जब ये चीज के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, बिलीव यू मी, आई वॉज सेलिंग ईपीएबीएक्स सिस्टम। उसके बाद में मैंने वायरलेस सिस्टम्स, मैंने वॉकी टॉकीज मैंने सेल किए, जिसमें भी काफी सारे चैलेंजेस आए, अप्स एंड डाउन जब देखते हैं हम, तो उसमें से हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, काफी सारी
चीजें हमें देखने को मिलती है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है, सेल्स हमें एक नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करता है। क्योंकि सेल्स में आज जब मैं घर पे आता हूं तो रोज शाम को ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज मेरा दिन पॉजिटिव होगा। रोज मेरा दिन पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं पे या तो ऐसा हुआ हो कि आज मेरा पूरा पॉजिटिव गया था, और आज मेरा पूरा दिन ऐसा था कि जहां पे मेरा कोई भी काम नहीं बना, मेरी कोई भी डील क्रैक नहीं हुई, मैं कोई भी जो आज जो मैं मोटिव लेके निकला था उसमें से 4 में से 3 चीजें आज मेरे हिसाब से नहीं हुई। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं जाऊंगा तो फिर मेरे पास में एक फ्रेश डे होगा और मुझे स्टार्ट करना है। सो सेल्स हैज हेल्प्ड मी टू डेवलप द नेवर गिव अप एटीट्यूड। सेल्स हैज इंक्रीज्ड माय नेगोशिएशन पावर। सेल्स हमेशा, सेल्स में आप और मैं, हम सब जब सेल करते तो हम क्या करने की कोशिश करते, हमारी एक जो नेगोशिएशन है उससे ही हम डील करते हैं सामने वाले के साथ में। मुझे कैरम बोर्ड चाहिए पापा, मुझे दिलाओ ना। मुझे साइकिल चाहिए पापा, अभी तो मैं 7th में आ गया, अभी तो मैं साइकिल चला सकता हूँ अपने आप। पापा अभी तो मैं 10th में आ गया, अभी तो मुझे एक्टिवा चाहिए। अभी तो मैं बाहर जा सकता हूँ, अभी तो मुझे बाइक चाहिए, अभी तो मुझे गाड़ी लेनी है, अभी मुझे ये गाड़ी नहीं, अभी तो मुझे BMW लेनी है। मैं वाइफ को कन्विंस करूंगा कि नहीं नहीं, मुझे अभी आज मेरे पास में अभी जो मेरे पास में कार है मुझे वो नहीं चलेगी, अभी मुझे BMW लेनी है। वाई BMW? तो वहां पे तो मैं नेगोशिएट करता हूँ ना। बट एट द सेम टाइम सेल्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू बी एन इफेक्टिव लिसनर। हम जब सुनते हैं सामने वाले को तब हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी विश क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद में हम हमारी पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। हमने अगर हमारा नेगोशिएशन पावर है, हम अगर इफेक्टिव लिसनर है, हमारी पेशेंस अगर डेवलप हुई है, तो हमारा कन्विंसिंग पावर जो है वो सेल्स में काफी अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेल्स हमें सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। एंड फ्रेंड्स, बिलीव यू मी, सेल्स में जिसने भी करियर स्टार्ट किया है, आप देखेंगे अगर तो आप किसी का भी नाम उठा लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन सेल्स किए बगैर आगे नहीं बढ़ा होगा। अगर हम आज नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने आप को सेल किया है, ऐसा मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सेल किया है। कैसे सेल किया? नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को कैसे सेल किया? नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सेल कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके अंदर क्या कैलिबर है, व्हाई ही कैन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी भी उन्होंने बताया, अपने आप को सेल करके उन्होंने काम करके बताया। उन्होंने अपना जो स्किल था, अपना जो कैलिबर था, वो उन्होंने डिस्प्ले किया, वो उन्होंने हमें सेल किया। हम में से काफी सारे लोगों ने, सारे लोग तो बाय नहीं करेंगे। 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, सारे लोग थोड़े ही मोदी साहब को प्यार करेंगे, सारे लोग थोड़े ही मान लेंगे। वैसे ही सेल्स में अगर हम 100 कस्टमर से मिलते हैं तो सारे कस्टमर्स हमारे नहीं हो सकते। रिमेंबर दैट कि 100% मार्केट हमारा नहीं हो सकता कभी भी। 100% कस्टमर बेस हमारा नहीं बन सकता। अगर वो हमारा बन जाएगा तो मार्केट में कंपटीशन कहां से रहेगी? हमें हमारे कंपटीशन को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है। लेकिन जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं तब हमें कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कस्टमर तो बात करेगा, लेकिन जो उनके जो पेन पॉइंट्स है कस्टमर के, वो हमें समझने, उसके सामने हमें हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस को हमें प्लेस करना है। सेल्स हो सकता है डिमांड एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के सामने अगर हम देखें तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए ना, तब जाकर के मेरी सेल कंप्लीट होगी। अगर हम देखें तो मैं जब करियर में आगे बढ़ा तो मैंने ये दिन भी देखे हैं कि जब सिचुएशन ऐसी हो गई कि जब मुझे लगने लगा
कि यार मैं सही में सही डायरेक्शन में जा रहा हूं सेल्स छोड़ के, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने प्रॉब्लम्स आए कि मुझे लगने लगा कि यार अभी नहीं हो सकता है, अभी मैं बिजनेस नहीं कर सकता, अभी मैं कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं पे मेरे से कुछ ना कुछ गलती हो रही है। बट तब मुझे मैं एक इंसान से मिला, दैट टाइम आई वाज इन पुणे, और उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो? मैंने बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे तो कहानी बताई। उन्होंने बताया कि एक इंसान था, और वो इंसान रोज शाम को घर पे जाते टाइम पे, ही वॉज इन सेल्स, वो रोज शाम को घर पे जाते टाइम पे उसके घर के बाहर एक ट्री था, वो पेड़ को छूता था, उसको हक करता था, और फिर वो उसके घर में जाता था। वो जैसे ही घर में जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स उसकी जो है वो उसको भूल जाएगा, और वो अंदर जाकर के वो एकदम खुश रहेगा। बोले मैंने खुद ने देखा है उस इंसान को, मैं ये सच्ची कहानी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जिग्नेश। मैंने बोला सही बात, क्या बात है सर? तो बोले यस, इसमें ये था कि मैं उनके साथ में था, उनके घर पे गया, उनके साथ में हम लोग जब गाड़ी से उतरे तब तक के वो एकदम उदास थे। वो गए, ट्री को उन्होंने गले लगाया, एंड देन वी एंटर्ड इनटू हिज होम, एंड देन ही वाज टोटली डिफरेंट। और बोले रात को फिर मैं निकल गया वहां से उनके घर से, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन वी मेट, दैट टाइम अगेन ही वाज फ्रेश। तो फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये क्यों, ऐसा कैसे हुआ? कल रात को तो आप एकदम डाउन थे, लेकिन जब हम आपके घर पे पहुंचे, दैट टाइम इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। मैंने आपको देखा तो घर के अंदर घुसते ही आप एकदम फ्रेश थे, आप एकदम हैप्पी थे, आप अपने फैमिली से बात कर रहे थे। देन ही सेड कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब वो पेड़ को जब मैंने गले लगाया, तो मैंने मेरे सारे प्रॉब्लम्स मैंने वो पेड़ को दे दिए। वो पेड़ को दे दिए प्रॉब्लम्स। उसके बाद में जब मैं घर में गया तो मेरे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे पास में कोई टेंशन नहीं थी, ना मेरे पास में कोई प्रेशर था। मेरे पास में खाली एक चीज थी, मेरा फैमिली। तो उसके बाद में तो मैं मेरी फैमिली के साथ में था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठा और जब मैं ऑफिस आने के लिए निकला, मैं शॉप पे आने के लिए निकला, तो बोले मैं वो पेड़ को फिर से हक किया और मेरे प्रॉब्लम्स मैंने लेने की कोशिश करी। तो मुझे सरप्राइज होता है रोज सुबह में कि जब मैं रात को जाता हूं तो मैं अगर उसके पास में, पेड़ के पास में, अगर मैंने 7-8 प्रॉब्लम्स अगर मैंने रखी है, 5 प्रॉब्लम्स अगर रखी है, 5 टेंशन रखी है, 5 प्रेशर वाली बात रखी है, तो सुबह में शायद उसमें से 2 ही मिलती है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती है बाकी 3 क्या थी। तो फ्रेंड्स, सही में अगर हम बैलेंस करें अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, देन थिंग्स कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली। और सेल्स सिखाता है, क्योंकि हम जब सेल्स में रहते हैं तो हमारे पास में प्रेशर आना ही आना है। उसको गले लगाना सीखो, उससे दूर मत भागो, क्योंकि हम जब बच्चे थे तब से हम सेल करते आ रहे हैं, और हम जब तक जिएंगे तब तक हमें सेल करना है। कब तक किस किस से दूर भागेंगे? अगर हम उसको गले लगाएंगे तो हमें उसमें से बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। मैं जब इसमें से पास हुआ, आई हैव सीन दी डेज कि जब बिजनेस नहीं हो रहा था, माय कलीग वाज बूमिंग। मैं ये बता सकता हूं कि माय कलीग वाज अर्निंग, आई विल से 100% इंसेंटिव एंड आई वाज अर्निंग 10% इंसेंटिव। दैट वाज द सिनेरियो। लेकिन फिर जब मेरे मैनेजर ने मुझे बताया, उसने मुझे जब ये चीजें समझाई, तो उसके बाद में सिचुएशन टोटली डिफरेंट हुई। एंड व्हेन आई वाज इन फेडेक्स, तो जैसे प्रहर ने शेयर किया था, with the team efforts, my team supported, they executed well planned situations, well planned targets हमने अचीव किए in the planned manner, and that resulted into pride award winning. आज मैं जहां भी हूं उसमें भी आज की तारीख में मैं बता रहा हूं कि वी हैव टू डू सेल्स। मैं कल भी, मुझे सेल करनी है, मैं सेल से दूर नहीं भाग सकता। मैं इंटरनल सेलिंग भी करता हूं, मैं एक्सटर्नल सेलिंग भी करता हूं, जो आप भी करेंगे। आप घर में भी सेलिंग करते हैं,
बाहर निकल के भी आप करते हैं, और मुझे भी वो चीज करनी ही पड़ती है, आपको भी वो चीज करनी पड़ेगी। सेल्स से दूर मत भागो सर, सेल्स से कभी भी दूर मत भागो। सेल्स करोगे तो आपके अंदर एक मास्टरी आएगी, आपको सारे डिपार्टमेंट्स, सारे फंक्शंस के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कभी भी कस्टमर से, कभी भी किसी भी कस्टमर से दूर मत भागो। हमने कमिट कर दिया, उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो सारी चीजें करो। देन एंड देन ओनली आपकी सेल कंप्लीट होती है। आपकी सेल कंप्लीट कब होती है? हम सोचते हैं कि मैंने दिया, वहां पे सेल कंप्लीट हो गई, कस्टमर खुश होके गया, खत्म। नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। रिपीट बिजनेस मिलना चाहिए। मैंने जो प्रोडक्ट सेल करी है उसका पैसा तो आ गया, उसके बाद में जब मैं कस्टमर के साथ में कनेक्टेड हूं, अगर मुझे रिपीट बिजनेस मिलता है, मेरी रिलेशनशिप अगर उस कस्टमर के साथ में 20 साल तक के, 25 साल तक के, 40 साल तक के रहती है, दैट इज व्हाट इज द सेल्स। आज मैं यहाँ पे बैठा हूं, आज मैं बोल सकता हूं कि मैंने 96 में मेरा जो कस्टमर था, 97 में जो मेरा कस्टमर था, 98 में जो एंड एक्सेस डिपार्टमेंट जो मेरा कस्टमर बना था, 99 में, 2000 में जो कस्टमर मेरा बना था, मेरा आज उनके साथ में रिलेशनशिप है। इफ आई हैव टू टेक द नेम्स, इट विल बी जिनके साथ में आज मैं कनेक्टेड हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मेरा कस्टमर था, सीमेंट फैक्ट्री वाला, लाफार्ज का, या चाहे मैं गोवा की बात करूं, चाहे मैं मुंबई की बात करूं, चाहे मैं पूना की बात करूं, चाहे मैं अहमदनगर की बात करूं, चाहे मैं दाहोद की बात करूं, हमारी रिलेशनशिप जो है वो सेल सेल सेल, बिकॉज सेल्स हमें रिलेशनशिप की ओर लेके जाता है अल्टीमेटली। तो हम रिलेशनशिप बिल्टअप करेंगे, सेल अपने आप होनी है। रिलेशनशिप अगर होती है तो हमारी एक शेयरिंग होती है, हम कस्टमर की फील जो है, कस्टमर की नीड जो है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई से लास्ट मैं खाली इतना कहूंगा आपसे कि एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम, explore the opportunity in every problem, and believe you me, आपने अगर वो प्रॉब्लम में अगर एक अपॉर्चुनिटी देखी तो आप उसके ऊपर काम करोगे, तो आपको इच्छा होगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको मैं आगे लेके जाऊं, एंड देन बिलीव यू मी, द सक्सेस विल बी ऑल योर्स। So thank you very much, friends, and let us hope that we will see many salespeople coming up in the near future through Millennium Makers. थैंक यू वेरी मच जिग्नेश, बहुत अच्छा आपने समझाया वर्क लाइफ बैलेंस, सेल्स और लाइफ एंड सक्सेस। In the end, viewers, do you have any questions? We have 5-10 minutes more if you have some questions, so Jignesh can answer them. Jignesh, I have one question on behalf of my students. As you Yes. related your story, is a story that was narrated to you by Yes. someone to maintain a work-life balance. But what is your trick for work-life balance? Prahar, when I start my day, I always say in the morning कि बॉस आज एक काम तो ऐसा हो जो मैं ही करूंगा। Okay. एक प्रॉब्लम आज मुझे ऐसी मिलनी चाहिए जिसका सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। Okay. क्यों? जिससे मेरी जॉब रहेगी, जिससे मेरा एक इंपॉर्टेंस रहेगा। ये हर एक इंसान को सोचना है। इसके साथ में अगर मैं सेल की बात करूं, सेल्स की अगर बात करते हैं, तो मेरा जो एक देखने का नजरिया है, मैं जब शाम को निकलता हूं ऑफिस से घर आने के लिए, तो मेरी कार में म्यूजिक चलता है। आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई स्टार्ट लिविंग माई प्रोफेशनल लाइफ बिहाइंड, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई रीच होम,
and if I receive a official call from any of the customer even at 9 o'clock in the night, then I understand कि बॉस कस्टमर रात को 9 बजे अगर फोन करता है, that means customer is in need. तो उस टाइम पे मैं मेरे प्रोफेशनल जिग्नेश को वापस खड़ा करता हूं. ये हर एक इंसान को करना चाहिए और हर इंसान ये करता भी है. उसके अंदर कहीं ना कहीं पे अगर हम कभी छोड़ते हैं, देन देयर इज अ नो बैलेंस और इम्बैलेंस, और वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. Okay. Good insight. And do we have any questions yet? I don't think so. So not taking much of your time, as I know how important your time is. Thank you very much again, Jignesh, for giving this valuable time to Millennium Makers and giving insight over the sales and your prestigious life journey as a from sales executive to a regional manager. Hope to see you soon on some other topic. Anything else you want to add at the end? Definitely, Pranav. Thank you very much. Thanks to you and Millennium Makers, and thanks to all the viewers, all the students, and wishing you all the best. कभी भी कहीं भी अगर लगे कि सेल्स के लिए अगर कुछ बात करनी है, ऑपरेशंस के लिए बात करनी है या किसी भी चीज के लिए, you can reach out to me anytime. Okay, viewers, the below is that are the details of Jignesh. You can note it down if you have any comment or any work related to sales. You can always get in touch with him. So Jignesh signing off. Thank you very much. Have a great day ahead and good night. Thank you. Good night. Good night, viewers.